جس کے گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا جادو جنات بیماریاں تکلیفیں ناکامیاں نہ جاتی ہوں، عاجز آ گیا ہو، ارے 5 اللہ کے نام پڑھے۔ اب تعداد کتنی پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی بتاتا ہوں۔ جو بندہ صرف 7 بار، کتنی بار؟ یا 70 بار یا بے شمار اس کو پڑھے گا، اس کی دکان بندی ہوئی ہے، سوچ لینا ذرا، اس کا گھر بندہ ہوا ہے، اس کی زندگی میں بندش ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا، حضرت کسی نے ہمارے گھڑیال کو باندھ دیا ہے، جو ٹن ٹن کرتا تھا نا گھڑیال پہلے، وہ باندھ دیا ہے، اور ایک بنگالی کی طرف تصور کیا کہ اس کو جادو بہت آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ میری پوسٹ پڑی ہے اکابر پر اعتماد، اس میں دیکھ لینا، کتاب کا حوالہ ہے، مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ کا فوت ہو گئے، ان کا حوالہ ہے۔ فرمایا اس کو دیکھ کے یہ اعمال کرو۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ آیا حضرت شیخ کے پاس، حضرت کسی نے لنگر کھانے کا تندور باندھ دیا ہے، تندور میں لکڑیاں ڈالتے ہیں، دھواں چلتا ہے، شعلہ نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا مٹی کے ڈھیلے کنکر فلان چیز لے کے اس پہ دم کر کے تندور میں ڈالو، تندور کھل گیا۔ اس لیے کہتا ہوں اپنے بڑوں کو پڑھیں، اپنے بڑوں کو پڑھیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں زندگی کی بہت ساری راہیں دی ہیں، ان راہوں کی وجہ سے ہم بڑے بڑے شرک اور بدعت اور غیر اللہ سے بچ جائیں گے۔ جس کی ایک دکان بندی ہوئی ہو، جس کا گھر بندہ ہوا ہو، اور کہتا ہے نیا گھر لیا ہے پر سکون نہیں، پرانا گھر ہے، اس کمرے سے کوئی آوازیں آتی ہیں یا یہاں سے کچھ ہوتا ہے، یا میرے بچے ڈر جاتے ہیں، یا گھر میں بے سکونی ہے، گھر میں میاں آتا ہے تو لڑائی کا طوفان، بیوی آتی ہے تو جھگڑے کا طوفان، بچے آپس میں الجھتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، زندگی میں چین ختم ہو گیا، یا کسی نے مجھ پہ وار کر دیا، یا کوئی جادو جنات کسی نے بھیجا، یا میرے اوپر جادو جنات کی بندشوں کی انتہا ہو گئی۔ اس سے کہہ دیں چپ کر کے نا اللہ کے ان 5 ناموں کو زندگی کا حصہ بنا، ان 5 ناموں کو۔ اب وہ 5 نام میرے ساتھ جذبے سے پڑھیں گے۔ میں چاہتا ہوں، کیوں پڑھا رہا ہوں؟ پتہ ہے کیوں پڑھا رہا ہوں؟ آپ کو کہتے تھے آپ خود پڑھ لیتے، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ماشاءاللہ سارے حضرات، اگر کوئی پڑھے لکھا نہیں ہے تو ایک پل میں اس کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے پڑھا رہا ہوں۔ کوئی مخلص، کوئی نیک، کوئی صادق، کوئی امین، کوئی سخی، کوئی درویش، کوئی رونے والا، اللہ نے صفات لوگوں میں منتقل کی ہیں اور تقسیم کی ہیں۔ کسی کے اندر سجدے کا جذبہ، کسی کے اندر خدمت کا جذبہ، کسی کے اندر سخاوت کا جذبہ، کوئی سچا عادل حاکم بیٹھا ہو، کوئی سچا درویش بیٹھا ہو۔ کسی ایک کی قبول ہوتی ہے تو سب کی قبول ہو جائے۔ اس لیے میں اجتماعی پڑھاتا ہوں تاکہ ہمیں قبولیت کے دروازے ملے۔ آیت خالی جھولی لے کر جائیں گے انشاءاللہ بھری جھولیاں لے کر، وہ میں نہیں دوں گا، میں تو خود منگتا فقیر، میں تو خود منگتا فقیر۔ تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے، وہی 2 جہاں کا امیر ہے۔ اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر میں اگر بندش ہے، مشکل ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، حالات کی سختیاں اور تلخیاں ہیں، آپ کی فیکٹری میں نظر بد ہے، آپ کو نظر بہت لگتی ہے، آپ کے بچوں کو، سب کا تصور کر لیں۔ کر لیا؟ کر لیا؟ میں کہتا ہوں عجیب چیز ہے، بہت عجیب چیز ہے۔ آئیں پھر گھر کا تصور، نسلوں کا تصور، کاروبار کا تصور، اپنی ذات کا تصور۔ اچھا اس کا ایک اور فائدہ بھی سن لیں۔ جو چاہتا ہے نفس اور شیطان کی جنگ سے بچ جاؤں، جو چاہتا ہے نظریں پاک رہیں، جذبے پاک رہیں، تنہائیاں پاک رہیں، تعلق مع اللہ رہے، جو چاہتا ہے ولایت کا تاجدار بن جاؤں، جو چاہتا ہے قبر میں ایسے جاؤں جیسے کفن سفید ہے، ایسے میرا دل بھی پاک اور سفید ہو، جو چاہتا ہے مولا میرے اندر عیب ہے، میرے اندر اے اللہ تو اپنی رام کی برکت سے نفس اور شیطان کی جنگ، شیطان کی میں نہیں لڑ سکتا، میں کمزور ہوں، میں اپنے
अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूँ, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूँ। तो वो मेरे साथ पढ़े, या हाफिज हो, या हफीज हो, या रकीब हो, या वकील हो, या सलाम। सुभान। ये अल्लाह के 5 नाम हैं। ऐसी जिन्नाती शैतानी चीजों को जकड़ के रख। यहां तक कहा कि एक बंदा मुझे मिला, खास तौर पे ये खवातीन जो है ना, ये बहुत पागल होके, दीवाना होके पढ़ती हैं। वो माई अल्लाह की नेक बंदी थी, उसके घर में कोई जिन्नात, जादू, परेशानियां, मसाइल। उसने जो इसको सांसों में पढ़ना शुरू किया, दिन रात एक कर दिया, लम्हा लम्हा एक कर दिया, किसी चीज का इंतजार नहीं किया, बस हर हालत में पढ़ा। कहा जिन्नात सामने आए, किसी चीज ने उनको रस्सों से, जंजीरों से बांधा हुआ है, और कहते हैं तुझे अल्लाह का वास्ता देते हैं, ये ना पढ़, ये ना पढ़। मैंने कहा तुम उनको अल्लाह का वास्ता दो कि हम ये पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। मेरे आका का फरमान है, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजर बस से होंगी। पुरानी बात है कि मैं ट्रेन से उतरा, तेज रहो थी ट्रेन, तेज रहो चलती थी। उतरा तो ऑस्ट्रेलिया मस्जिद स्टेशन पे एक मस्जिद है, चौक, ऑस्ट्रेलिया चौक। पुराना एक बंदा था, ऑस्ट्रेलिया गया था, फिर उस ऑस्ट्रेलिया बैंक भी बनाया था, ऑस्ट्रेलिया चौक भी, कोई पुराना बंदा था। खैर मैंने वहाँ नमाज पढ़ी और नमाज के बाद बाहर निकला तो भूख लगी, तो मैंने कुछ फल ले लूं। एक साइकिल वाला खड़ा था, उसने साइकिल के पीछे ठेला लगाया हुआ था, छाबा बांधा हुआ था, उसके बाद फल लिया। उसकी हालत देखी मैंने कहा अगर मैं तुझे एक चीज बता दूं तो सारा दिन खुला पड़ता रहे। पढ़ा हुआ है? कह रहे बिल्कुल थोड़ा सा। मैंने उसे एक छोटी सी दुआ लिख के दे दी। मैंने कहा सारा दिन इसको पढ़ते रहो, सारा दिन खुला पढ़ते रहो बस। उसे समझाए, उसके फायदे बताए, उसके नतायज, उसकी बरकत, उसके कमाला, थोड़ा सा उसको मैंने वक्त दिया। क्यों? एक दरवेश फरमाते हैं कि इंसान की हालत भी ऐसे है कि बकरी को डंडा दिखाओ भाग जाएगी, घास दिखाओ आ जाएगी। इंसान को नफा दिखाओ, नफा दिखाओ तो फिर इंसान करता है। मैंने वो दुआ थोड़ी सी मुख्तसर सी है, मसनून दुआ है, वो बता दी। अच्छा, उसके अंदर सच्ची तलब थी। वो असल में होता सच्ची तलब और यकीन पे है। अगर सच्चा जज्बा हो, सच्ची तलब हो और यकीन हो तो दुआ आप वो चीज बहुत फायदेमंद होती है और बहुत नफा देती है। उसने कुछ पढ़ा और खूब पढ़ा और बहुत ज्यादा पढ़ा और हद से ज्यादा पढ़ा और बहुत ज्यादा। उसका फायदा क्या हुआ और उसके बरकत क्या हुई? बकौल उसके कुछ ही अरसे के बाद, साल 2 साल, कितने अरसे के बाद, साथ एक होटल बिक रही थी, चलता हुआ कारोबार था। कोई पहाड़ों का बंदा था, उसकी होटल थी, उसने वो खरीद ली, इतना पैसा हो गया। फिर दुकान एक और खरीद ली, फिर और खरीद ली। मैंने कई लोगों को ये दुआ बताई तो हत्ता कि कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया कि आप दुआ हमसे वापस ले लें, गिने नहीं जाते। और यहाँ तक है कि पहाड़ जितना कर्जा हो, पहाड़ जितना कर्जा हो, इस दुआ की बड़ी तासीर है। रिस्क की वुसअत के लिए, रिस्क की बरकत के लिए, गैबी निजाम हमारे साथ। मैं दुआ बताता हूँ, अल्लाहुम्मा मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। तर्जुमा थोड़ा सा बताऊंगा। अल्लाहुम्मा मक्फिनी, अल्लाह मेरी किफायत कर, पर कर हलाल से, अन हलालिका, अल्लाहुम्मा मक्फिनी अन हराम, और हराम ना हो। व अगनिनी, मुझे गनी कर दे, थोड़ा नहीं मांगता, गनी कर दे। और गनी भी कैसा कर दे? अम्मन सिवाक, किसी का सवाली मोहताज ना बनाना, अपने दर का बनाना। एक दर्द हुजूरी हो जाइए, दर्द गदाई की करनी। अल्लाह मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। कमाल चीज है। जो बंदा दीवाना होके वज़ू बेवज़ू हर हालत में दिन रात सैकड़ों हजारों इसको खुला पढ़े, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, अजब नताइज हैं। सारी दुनिया में 9/11 कोरोना है, अल्लाह पाक इसको ऐसे खिलाएगा पिलाएगा और इसकी नस्लों को खिलाएगा। दलील दूं? दलील दूं? जितने भी मुजावर गद्दी नशीन आस्थानों के दरबारों के हैं, उनके लिए महंगाई की कोई हैसियत नहीं। आज इससे बढ़ जाए उनको कोई परवाह नहीं।
उनके मुरीदीन उनको इतने हदाए, इतने गिफ्ट बिन मांगे में देते हैं। ये अल्लाह पाक कहते तेरी नस्लों को पाल के दिखाऊंगा। उनके बड़े यही वज़ाइफ, यही तस्बीहां, यही वजीफे कर करके गए थे उनके बड़े। आज उनकी नस्लों, उनके दरबारों, उनके खलीफों, उनके मुजावरों, उनकी नस्लों को अल्लाह पाक ऐसे बैठे खिला रहा है। ये उसका वादा है, मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पालूंगा। और बाजों का 7 नस्लों का, बाजों का 3 नस्लों का, बाजों का 40 नस्लों का, बाजों का 70 नस्लों का वादा है। तो ये दुआ है जी। लोग ना नजर बद को कुछ नहीं समझते हैं। अगर नजर बद को समझा है तो गोरे ने समझा है, समझा है तो गोरे ने समझा है, इवल आई और बैड आई के नाम पे। और वो एक लॉकेट होता है जिसपे एक आंख बनी हुई नीले रंग का जी, बिल्लू है। हम नजर बद को कुछ नहीं समझते, जबकि नजर बद, मैंने एक काम शुरू किया है कुछ अरसे से। हमारे बाज़ औक़ात नावाकफियत की बुनियाद पे लोग कहते हैं कि अंग्रेजों को जादू जिन्नात नजर बद फलां फलां चीज नहीं होती, हमें होती है। वो कहाँ निकल गए, हम वहीं खड़े हैं। ये हमारी नावाकफियत है। मैंने गोरों की किताबें जमा शुरू की, करते करते करते, और अपनी नेट की दुनिया में गोरों की किताबें डाल रहे हैं। इतनी सैकड़ों किताबें हो गई हैं गोरों की कि गोरों का नजर बद जादू जिन्नात से वास्ता पड़ा, फिर उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने अपने हालात लिखे। गोरों की किताबें नजर बद। और मैं एक हदीस सुनाऊं आपको, ये हदीस भी शायद बहुत कम सुनने को मिलती है। मेरे आका का फरमान है, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजर बद से होंगी। गौर से सोचे, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात। मेरे एक मुखलिस थे मियां तारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम खानपुर नहर के साथ हजवेरी महल है, हम वहां ना, मैंने कहा मियां साहब आपको मैं सुबह सुबह लेके आया हूँ जल्दी से, आपको भूख लगी है? नहीं, मैंने कहा नहीं भूख लगी। वहां मछली बनती है खानपुर, शेखपुर रोड पे, खानपुर पे। हम एक कोने में एक तरफ होके बैठ गए, मैं था, हमारे एक मुखलिस है नादिर शाह वो था, और मियां तारिक साहब थे, उसके ताजर थे यहाँ के बदामी बाग। अच्छा, एक बंदा आया, अचानक उसने दूर से मेरी शक्ल देखी, आगे बच्चा बिठाया हुआ, बीवी पीछे बीवी बिठाई हुई, और उसने जो है वो अस्सलाम वालेकुम हजरत साहब आप माशाल्लाह। उसने ऐसे देखा ना, मियां साहब कहने लगा हजरत साहब मैंने नजर खा गई है, बिल्कुल ठीक ठाक मुझे नजर लग गई। मैं कि मियां साहब कह रहे नहीं, उसने जो अंदाज से देखा है ना नजर लग गया। ऐसे हुआ 2.5 साल जिंदगी की कश्मकश में आखिर चला गया। आंखों के सामने खादिम साहब के, विक्टर साहब के हमारे पड़ोसी हैं, बहुत बहुत अजब इंसान, अजीम इंसान। नजर बद को हम समझते कुछ नहीं समझते। अच्छा, मैं आपको अपना इलाज बताता हूँ, आप अपना इलाज रोजाना कर सकते हैं, और मेरा मशवरा है जरूर करें। वो ये है, आजकल तो वैसे शीशे के सामने खड़े होने का रिवाज बढ़ गया है, इतना बड़ा है कि ड्रेसिंग टेबल आ गई, बंदा खड़े खड़े ना कमर मुक जाती है, कमर ही खत्म हो जाती है, फिर ड्रेसिंग टेबल बन गई उसके लिए। अब ऐसा करें, शीशे के सामने खड़े हुए हैं ना, चंद लम्हे जितने भी खड़े होते हैं, अपने आप को देखते हुए एक दुआ जरूर याद करें, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला नहीं है इसमें, अल्फाज जो हैं वही हों। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 11 बार पढ़ लें। आप तजर्बा करें, बाज़ औक़ात आपको अपनी शक्ल बिगड़ी महसूस होगी खुद शीशे के अंदर। इस बात की दलील है कि नजर बद है, ना भी हो आपको नजर नहीं खाएगी। अच्छा, नजर के बारे में एक मुगालता है, हम समझते हैं नजर इंसानों की है, हमसे ज्यादा जिन्नात की लगती है। इंसानों से ज्यादा जिन्नात की नजर लगती है। इंसान नजर आते हैं, जिन्नात नजर नहीं आते। गोरा जो है जिन्नात की नजर बद को बहुत मानता भी है और इसको तोड़ भी करता है, और गोरा इस बात। तो नजर बद का इलाज यही है, इस पर तवज्जो करें। नजर बद का इलाज, जिन्नाती शैतानी चीजों का इलाज लीमू में है, अंडे में है, सरसों के तेल में है, नमक में है, बहुत सी चीजों में है, और बेशुमार कलाम इलाही में है। मैंने एक छोटी सी चीज आपको बताई है, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं फिर कहूंगा कि नजर बद को सोचें। वो अच्छा, नजर बद के कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से नजर बद लगती है? खुला जिस्म, खुला चेहरा, खुले बाल, खुली जिंदगी नजर खा जाती है। इंसानों की तो खाती है, जिन्नात की खा जाती है।
आप सोच नहीं सकते। अगर मेरी बात कमजोर महसूस हो भी सकती है, मेरी बात कमजोर महसूस हो सकती है, आप गोरे के पास जाएं, उससे पूछें तो बता। गोरा कहते हैं मेरे यहाँ जो बढ़ते हुए खुदकुशियां, ओल्ड होम्स, एंजाइटी होम और पागल खाने, और ये उसकी बुनियादी वजह ये है। गोरा वापस जिंदगी पे आ रहा है। वो कहते हैं 3 चीजें ढकी अच्छी हैं, औरत, रिस्क, खाना और दौलत, ये छुपी अच्छी होती है। गोरा वापस उस जिंदगी पे आ रहा है। आप गोरे से पूछें, मोबाइल पे फौरन सर्च करें, एक लिंक मिलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपको मालूमात मिलेंगी कि मैं पत्थर के दौर की बातें नहीं कर रहा, मैं आज से सदियों बात नहीं कर रहा। इस वक्त दुनिया अपने पूरे उरूज पे गई है, उरूज से वापस की तरफ लौट रही है। खुली जिंदगी की थोड़ी तफसील बनाते हैं। खुली जिंदगी की तफसील क्या बताऊं? मेरे पास खुली जिंदगी की तफसील सैयदा फातिमा, सैयदा आयशा, उनकी जिंदगी है और उसी पे सारी दुनिया की साइंस वापस लौट रही है। हकीकत कह रहा हूं, अगर कोई चीज समझनी है तो हमें साइंस ही हमारे लिए दलील है। तो गोरे को पकड़ लें, उससे पूछें तो किस चीज पे वापस आ रहा है? ग़िज़ाओं के नाम पे कहाँ आ रहे हैं? जिंदगी गुजारने के नाम पे कहाँ आ रहे हैं? हमारे हालात, फिर कहूंगा मैं, आप जितनी हमारी मोहतरम बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, मैं आपसे एक बात फिर कहूंगा, हमारी बुनियादें नजर बद के साथ जुड़ी हुई हैं और नजर बद को हम कुछ नहीं समझ रहे। मेमोरी जा रही, याददाश्त जा रही, जिस्म जा रहा, हालात जा रहे, कर्जे हैं, हालात नस्लों के, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां। मेरे आका ने एक बात फरमा दी, मेरी उम्मत की अक्सर अमवात नजर बद से होंगी। हम नजर बद को कुछ नहीं समझ रहे, और खास तौर पे जिन्नाती शैतानी चीजों की नजर बद जो हमें नजर नहीं आती। इसलिए फरमाया युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, दोनों का तस्करा किया, जिन भी और इंसान। हम इसको नहीं समझ पा रहे, बाज़ औक़ात सांप जिन्नात की शक्ल में होते हैं। इसलिए फरमाया सांप को मारने से पहले 3 दफा कह दो अगर अल्लाह की दूसरी मखलूक है चला जा। वाक़यात दर वाक़यात हैं। आप इस शोबे में अगर घूमेंगे, मैं कहता हूं कुछ ना करें, आप गोरे को ले लें, और गोरा इस दुनिया में हमसे आगे निकल गया और लोगों ने क्या किया, हमें मुगालतों में डाल दिया है। बस ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा, हमें मुगालतों में डाल दिया है और खुद उसी चीज को पकड़ के आगे निकल गए, हमें मुगालतों में डाल दिया। तो मेरी आपसे दरखास्त यही है कि नजर बद के बारे में सोचें कि नजर बद लगती क्यों है। पहले तो उसको देखें ना। एक बंदा रोज जहर भी खा रहा, साथ एक चीज खा रहा, किससे? जहर का इलाज। पहले जहर तो खाना छोड़, फिर उसके बाद इलाज भी है। मैंने दोनों चीजें बताई। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। आमीन बिरहमतिका।